اور میرے شیخ الاسلام وقت کے مجدد، 1000 کتابوں کے مصنف، اور ہماری خوش بختی کہ ہم اس دور میں زندہ ہیں جس دور میں آج 56 اسلامی ممالک کی اسلامی اقوام متحدہ، جس کا نام OIC ہے، سعودی عرب جیسے نازک ملک میں کہ جس میں کوئی تنظیم کھل کر کام نہیں کر سکتی، اس ملک میں 56 اسلامی ممالک کی مشترکہ کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس میں شرط ہے کہ کسی بھی اسلامی ملک کا وزیر خارجہ یا وزیر اعظم شریک ہوتا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ 56 میں 55 ممالک کے وزرائے خارجہ اور وزرائے اعظم نے شرکت کی، لیکن ایک شخص جو ہے غیر سرکاری مگر سرکار کا ہے، اس مرد حق کو اس ایونٹ پر، پروگرام میں، OIC کی تقریب میں، باقی سب کے لیے 5 سے 7 اور 4 منٹ کا ٹائم تھا۔ ڈاکٹر طاہر القادری کو 25 منٹ خطاب اور 20 منٹ سوال و جواب کی نشست سمیت 45 منٹ اس OIC کے اجلاس میں موقع ملا گفتگو کا، اور OIC کی ساری بزم 56 اسلامی ممالک اپنا ایجنڈا اور اس وقت اپنی قرارداد منظور کرتے ہوئے مجبور ہو گئے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا لکھا ہوا امن پر نصاب تمام اسلامی ممالک کے سلیبس میں شامل کرنے کا اعلان ہوا۔ آپ خوش نصیب ہیں، اس دھرتی پر زندہ ہیں جس دھرتی کے فرزند کو اللہ نے یہ جرأت، یہ طاقت اور یہ مقام نصیب فرمایا۔ میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو مینشن کیا کہ جب یہ قرآن کی آیت اتری وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا، کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، انہیں چاہیے کہ رب سے معافی مانگنے کے لیے در مصطفیٰ پہ آ جا۔ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے بولو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ جا۔ اب ایمانداری سے بتائیں، کیا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اتنے گناہ کیے کہ اب ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اور یہ بات، یہ جملہ کہتے ہوئے لوگ جھجک رہے ہیں، آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ جملہ ہم بولیں کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ آپ پریشان ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام نے جنت میں کتنے دانے کھائے تھے؟ بولیے، صرف ایک دانہ کھایا تھا۔ 350 سال اقرار جرم کرتے رہے۔ جرم سے مراد کوئی گناہ نہیں تھا، یہ وہ تھا کہ جس پر نسیان اور بھول ہو گئی تھی، اس پر پچھتاتے رہے۔ ایک دانہ کھانے کے بدلے 350 سال خود کو کہتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ ایک دانہ کھانے والی ہستی اپنی جانوں پر ظلم کرنے کا اعتراف کرے تو جنہوں نے بوریاں کھا گئے اور ہم بڑولے کھا گئے اسی گندم کے دانوں کے، ہم شرما رہے ہیں کہ کیا ہم نے بھی کوئی اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ گناہ رہتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں گناہگار کو ظالم نہیں کہا، لیکن جب گناہگار گناہ پہ ڈٹ جائے اور کبھی معافی نہ مانگے، اللہ نے اس دن اس کو ظالم کہہ دیا۔ فرمایا من لم یتب فاولئک هم الظالمون، جس نے توبہ نہ کی اب وہ ظالم ہو گیا۔ میرے مولا، ہم وہ سب ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ بتا، معافی مانگنا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے راستہ کیا ہے؟ فرمایا سنو، گناہ صغیرہ ہوں، نمازیں پڑھو دھل جائیں گے، گناہ کبیرہ ہوں، کسی مرد کلندر کے قدموں میں آؤ دھل جائیں گے، اور جب گناہ کر کے کبھی توبہ نصیب نہ ہو تو پھر جانوں پر ظلم کرنے والے ہو گئے۔ میرے مولا، ہم سب جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ Have you any way، کوئی رستہ ہے کہ ہم بچ جائیں، معافی مل جائے، جانوں کا ظلم دھل جائے؟ تو کوئی رستہ ہے؟ آواز آئی ہاں، there is only one way، صرف ایک رستہ ہے۔ میرے مولا وہ کیا؟
فرمایا वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जुल्मों की गठड़ी उठाकर दरे मुस्तफा पे आना तुम्हारा काम है, बख्श देना मेरा काम। अपने जुल्मों की गठड़ी उठाकर दरे मुस्तफा पे आ जाओ, मेरे महबूब के दर पे आ जाओ। मेरे मौला वहां आकर भी तुझसे ही माफी मांगनी है। कुरान कहता है फस्तगफिरुल्लाह, वहां आकर भी अल्लाह से माफी मांगो। अब बताएं यहां किससे मांगते? बोलो ना। मैं समझना कि 12 का उतर टाइम है, लेकिन तुम्हारे भी 12 बज गए। यहां किससे माफी मांगते हैं? बोलो। अल्लाह यहां मौजूद है कि नहीं मौजूद है? अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर के दर पर जाकर किससे माफी मांग रहे हैं? वहां भी अल्लाह मौजूद है। तो मेरे मौला वहां बुला के पैसे खर्च करवा के फिर माफ करना है तूने, तो यही माफ कर दे, यहां भी तो तू है। अल्लाह फरमाता नहीं, जान पर जालिम को यहां माफ नहीं करता, क्योंकि यहां तुम्हारे यार है या वहां मेरा यार है। तुम्हारे दोस्त देखूं या अपने हबीब का मुखड़ा देखूं, वहां तरे मुस्तफा पे आओ। There is only one condition to achieve the love of Allah. अल्लाह तक रसाई हासिल करने के लिए सिर्फ एक शर्त है कि दरे मुस्तफा पे आ जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और खास बात, वहां आकर मुझसे माफी मांगो। ये आयत जब नाज़िल हुई ना, तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन तक आगे पहुंचते पहुंचते थोड़ा वक्त लग जाता था। अब ये दौर तो था नहीं कि मीडिया, सोशल मीडिया का कोई बटन दबाना है तो अमेरिका बात पहुंच जानी। वहां बात पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाता था। एक एराबी सहाबी देहाती, उनको इस कुरान की आयत का फरमान उस वक्त पहुंचा जब आका का विसाल हो गया। जब सरकार का विसाल मुबारक हो गया, उन्हें खबर पहुंची, कुरान की आयत आई है, जान पर जालिम की माफी का अंदिया और खुशखबरी आ गई। उसने खुद को यह समझा कि मैं ही वो हूं जिसने जान पर जुल्म किया हुआ है। वो अपने घर से निकला और हुजूर की खिदमत में आता रहा और अपने गुनाहों पर पछताता रहा और रोता रहा। रोते रोते तड़पते तड़पते मदीना पाक पहुंचा। उसे उस वक्त खबर नहीं थी कि आका का विसाल मुबारक हो गया। उन्हें आकर पूछा, ऐना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका कहां है? मैंने सुना है कि जो मुस्तफा की बारगाह में आ जाए और आकर माफी मांगे, अल्लाह उसे माफ कर देता है। तो मैं हुजूर की खिदमत में माफी मांगने के लिए हाजिर हुआ हूं। तो किसी को पता है कि हुजूर कहां है? जब सहाबा ने बताया कि आका का तो विसाल हो गया, हुजूर तो तशरीफ ले गए बज़ाहिर, आका तो पर्दा फरमा गए। जब ये सुना, वो सहाबी चीखे मार मार के रोते, बुलंद आवाज से रोते और मुस्तफा के हिजर, आका के गम, हुजूर की जुदाई में इस कदर रोते कि कुल अहले मदीना उसकी गिरिया उजारी सुनकर उसके गिर्द जमा हो गए और वो रोते रोते हुजूर की कब्र अनवर से लिपट कर रोने लग पड़े। हुजूर की मट्टी को ले लेकर रोते और आका की कब्र अनवर पर झुक झुक के आंसू बहाते, अर्ज करते, आका अब मेरा क्या बनेगा? मैं तो अपनी जान पर किए हुए जुल्म लेकर बारगाह मुस्तफा का सहारा समझकर हुजूर की खिदमत में आया था कि आका आपके सदके बख्शा जाऊंगा, आपके दर की हाजिरी मिलेगी, आपका दीदार मिलेगा, आपके तसद्दुक और तवस्सुल से मेरी बख्शिश हो जाएगी। हुजूर के हिजर में, फिराक में, गम में तड़पा, रोया, भड़का। इस शिद्दत से रोया कि वो सहाबी एराबी हुजूर की कब्र अनवर से लिपट कर काफी देर तक रोते रहे। कुछ देर के बाद उन्हें होश आया और होश में आकर वो उठे इस ख्याल से कि शायद ये हुजूर की ज़ाहरी हयात का मसला था कि जो आका की ज़ाहरी जिंदगी में आएगा उसे बख्शा जाएगा। उन्हें ये समझ आई और वो रोते रोते बिलाखिर अपने घर को लौट गए। मगर घर जाके भी हुजूर के हिजर व फिराक में अपने घर की नुक्कड़ में एक छोटी सी कुटिया बनाकर
उस पर बैठकर जब रोने लगे तो मदीना पाक में एक सहाबी को मेरे आका का उसी रात दीदार हुआ और हुजूर ने फरमाया, मेरे गुलाम, फलां पता है, फलां एड्रेस है, फलां बिन फलां है, उसके घर जाओ और जाकर उसे खुशखबरी सुना दो, खुदा ने मोहम्मद के सदके तेरी दुआ कबूल कर ली है और तेरी बख्शिश का ऐलान कर दिया है। पता चला कि हुजूर के विसाल मुबारक के बाद भी नबी के हिजर और मोहब्बत में कोई रोए तो मुस्तफ़ा उसका रोना भी सुनते हैं, उसकी मोहब्बत और जुदाई भी सुनते हैं। और बात हस्बे वादा ख़त्म करते हुए, हाज़रीन मोहतरम, मदीना पाक का मुकाम है और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हुजूर के रोज़े पर हाज़री के लिए गया हुआ था और इसको शुमाइम इमदादिया में अहले देवबंद के आलिम मौलाना अशरफ अली थानवी उन्होंने नकल किया है। शुमाइम इमदादिया वो कहते हैं कि मेरे मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह आका के दर पर जब हाजिर हुए तो देखा एक बिल्ली मुस्तफ़ा के रोजे के गिर्द तवाफ कर रही थी। एक बिल्ली आका के दर के गिर्द तवाफ कर रही थी। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कहते हैं मैंने उस बिल्ली को जब हुजूर के दर पे यूं घूमते झूमते मचलते तवाफ करते देखा, मेरे दिल में ख्याल आया ये तो जानवर है और हम इंसान और फिर इन हुजूर के उम्मती हैं। कहते हैं मैंने 3 दिन उस बिल्ली को इसी हालत में देखा। तीसरे दिन मेरे ख्याल में आया कि मैं इस बिल्ली को जाते हुए साथ ले जाऊंगा और ले जाकर जब रात को लोग सो जाएंगे उठकर इस बिल्ली की टांगे दबाया करूंगा और इसको अपने हाथों से प्याले में दूध लेकर पिलाया करूंगा और रातों को उठ के जब कपड़ा उतरेगा इससे मैं इसके ऊपर कपड़ा दूंगा, इसे बेड पर बिस्तर पर सुलाऊंगा, इसके आराम का पूरा ख्याल रखूंगा, इसकी नौकरी और खिदमत करूंगा कि दरे रसूल पर टुकड़े खा गए वली है, आका के दर की गुलामी में रही है और मुस्तफ़ा के रोज़े अनवर पर झूमती घूमती और टुकड़े खाती रही है। उसकी नौकरी और खिदमत का जज्बा मेरे दिल में उजागर हुआ, जाग उठा। मेरे दिल में जब बात पुख्ता हो गई और मैंने जिस दिन वापस आना था उस दिन जब ख्याल पक गया, जोहर की नमाज पढ़ के मैं कैलूला के लिए सो गया, बिस्तर पे आंख लगी, मुकद्दर जाग गए। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कहते हैं मेरे ख्वाब में मुस्तफ़ा आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया, इमदादुल्लाह हमारे दर से बिल्ली ले जाने का इरादा रखते हो? अर्ज की आका अगर इजाजत हो जाए तो सिर्फ इस ख्याल से ले जाना चाहता हूं कि उसकी नौकरी करूंगा, उसकी खिदमत करूंगा। मेरे आका ने फरमाया, इमदादुल्लाह तुझे हमारे दर से बिल्ली ले जाने की इजाजत नहीं है। तुझे क्या खबर, जिस दिन से तेरे दिल में ख्याल आया कि इसे ले जाऊंगा उसी दिन से हमारे रोजे पर बैठकर रो रही है, हुजूर बचा ले मदीना छूट रहा है, आका बचा ले मदीना छूट रहा है। जिस दर पर बिल्लियों को इतनी खबर हो उस दर पर उम्मती बाखबर क्यों नहीं होता? शर्त यह है कि आका से निस्बत और गुलामी का रिश्ता मजबूत कर ले, रहे जहां मर्जी अपने दिल को आका के रोजे पे ले जाए और मदीने में ले जाए। और बात खत्म करते हुए, जाऊ का इसके 2 माने हैं कि दरे रसूल पे आ जाए अपने जुल्मों की गठड़ी उठाकर। खास बात जाऊ का, अगर आप सोचे कि जालिम तो हम अपनी जानों पर सारे ही हैं, लेकिन कुछ पैसे लगा के जा सकते हैं और कुछ गरीब मिस्कीन हैं, कोई यतीम भी होगा तो जा नहीं सकते, जालिम सारे ही हैं, तो फिर क्या माफी नहीं मिलेगी? सुन लें, जाऊका के मुफस्सिरीन ने 2 माने लिखे हैं। एक माना यह है कि जो पैसे लगा के जा सके वो जिस्मन चला जाए और जिसके पास कुछ नहीं रहे जहां मर्जी अपना ख्याल मदीने ले जाए, अपना दिल मदीने ले जाए, दिल की धड़कन मदीने ले जाए, तसव्वुर निगाह और शौक और रूह मदीने ले जाए। बस बैठे यहां ध्यान मदीने हो, रहे यहां दिल मदीने में हो, घूमे फिरे यहां मगर तसव्वुर मदीने में हो, शऊर और आगाही में मदीने में हो। बस ख्याल करके नबी के रोजे का, नबी के वसीले से
رب کی بارگاہ میں دعا کرے، رہے جہاں مرضی، دل کی دھڑکن مدینے سے جڑ جائے، خدا مصطفیٰ کے صدقے اس جان پر کیے ہوئے ظالم کو بھی معاف کرنے کا اعلان کرے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے۔ مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ آپ نے جو سنا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، تھوڑے وقت میں جو میں نے آپ کو سنایا، دعا دیجئے میرے شیخ الاسلام جن کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے سیکھا، ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، شاگرد کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، سارا استاد کا ہوتا ہے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے اور خالق کائنات ان کے توسل اور تصدق سے آقا کی امت پر بہارا کرے اور مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع فرمائے اور جلد اس ملک کو آقا کا نظام ملے اور مصطفی انقلاب کے ذریعے اس ملک کے اندر بہار آئے۔ وما علینا الا البلاغ۔